Hello, students. Good evening to all. My name is Manisha. I'm your business studies educator. Welcome to all of you on our platform, that is Expansion Path Academy. So, today we are going to start with our chapter number 3, Business Environment. This chapter belongs to your part 1 of business studies. Okay? So, before that, we had done the nature and significance of management, and after that, principles of management. So today we are going to do business environment. तो अभी तक हमने ये सीखा कि मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है. व्हाट इज द मैनेजमेंट? इट रेफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, अरेंजमेंट ऑफ टास्क और एक्टिविटीज दैट हैज टू बी इनकर्ड, ओके. एंड उसके नेचर किए सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. देन वी हैड डन the various branches of management, whether it works as an art, as a science, or as a profession. Okay? Then we had done the essence of management, which is coordination. Right after that, we had done the principles of management in our second chapter, where we had completed our principles belong to Henry Fayol, the 14 principles of management. Afterwards, the 4 principles of scientific management that belongs to F.W. Taylor. उसी के साथ ही हमने उसके मेथड्स या टेक्निक्स कह लो वो भी किए थे, ठीक है. मेथड्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, द सिंप्लीफिकेशन, वर्क प्रोसीजर, ऑल दीज थिंग्स, राइट. टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर थर्ड चैप्टर, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. So basically, what is business? Business refers to activity which is continuous in nature, ठीक है, where the one party is involved in selling or exchange of goods or services, and the other party involves in purchase of the same, right? Environment refers to the aggregation or sum total of all the activities that have direct or indirect influence upon your business. ठीक है. सो कुछ भी फैक्टर्स हैं, कुछ भी कंपोनेंट्स हैं आपके एनवायरनमेंट में, उन सबको मिलाकर उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके बिजनेस के ऊपर, हाउ दे इम्पैक्ट इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव मैनर, वी हैव टू स्टडी दैट इन आवर एनवायरनमेंट. ठीक है. सो ये एनवायरनमेंट बिजनेस के पर्टेनिंग है कि कौन से कंपोनेंट्स या फैक्टर्स होते हैं विच इन्फ्लुएंस देम, राइट. सो दिस इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट. Beginning with its meaning refers to sum total of all individuals, institutions, and other forces that are outside the control of a business enterprise, but they may affect its performance. तो यानी कि यहाँ उन फैक्टर्स की बात की जा रही है which are not under the control of business. ठीक है. There are some factors which business may control easily, ठीक है, लेकिन there are some factors which a business cannot control on its own. ठीक है. So they are called external forces, external factors. So accordingly the business have to act, right? So ऐसे factors जिनका business पे कोई control नहीं होता है, ठीक है, business जिनको control नहीं कर सकता है, and they're outside the purview of control of a business, और उनका कहीं ना कहीं impact जरूर रहता है business के ऊपर, उनको हम क्या कहते हैं? Business environment. So उन factors के totality को हम बोलते हैं. ऑलराइट. फीचर्स की बात करते हैं. सो बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं? द फर्स्ट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. एज said earlier, it refers to all those components, all those forces ठीक है. फर्स्ट है हमारे पास टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. What does this mean? This means कि it is the sum total of all the activities or the factors that have direct or indirect influence upon your business. ठीक है. So totality of external forces. External क्यों बोल रहे हैं? Because business environment में आपके internal factors नहीं आते हैं. Right. आगे चलते हैं specific and general forces. Very very important. So business factors that have influence upon your business वो दो categories में बटे होते हैं. एक होता है आपका स्पेसिफिक फोर्स, एक होता है आपका जनरल फोर्सेस. स्पेसिफिक फोर्सेस में वी आर नोइंग द नेम्स ऑफ दोज इंडिविजुअल्स. वो आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, कंपेटिटर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकता है. सो ऐसी पार्टीज विच वी कैन रिकॉग्नाइज इजीली, दे आर द स्पेसिफिक वंस, उनको हम बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस. ओके. और जनरल फोर्सेस में क्या आते हैं? इसमें हमारे पास as we can say the slept factors बोलते हैं हमको, right? ठीक है.
तो हमारे पास जो जनरल फोर्सेस हैं, जनरल फोर्सेस को हम स्लेप्ट के नाम से रिकॉग्नाइज करते हैं। व्हाट इज स्लेप्ट? एस देखो सोशल, ठीक है, एल रेफर्स टू लीगल, ई रेफर्स टू इकोनॉमिक, ओके, E refers to economic. Here it is missing in the definition, but it is present in your syllabus, right? And P refers to the political and T refers to technological. तो ये सारे environment को हम बोलते हैं general forces, ठीक है? Social, legal, economic, political, technological. So all these forces have the impact upon business equally as have the specific forces, ठीक है? So I hope ये compare करना easy हो जाएगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक फोर्सेस जैसे कि इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कंपेटिटर्स, सप्लायर्स हो गए आपके, ठीक है, गवर्नमेंट भी इसमें आती है, सो दे हैव इंडिविजुअल इम्पैक्ट अपॉन योर बिजनेस। लेकिन अगर हम जनरल फोर्सेस की बात करते हैं तो इसमें सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। तो इनके इंक्लूजन से आपका बनता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ऑलराइट, थर्ड चलते हैं इंटर रिलेटेडनेस। दिस मीन्स क्या है? जितने भी कंपोनेंट्स आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में होते हैं, दे ऑलवेज हैव some degree of independence, some degree of dependence upon each other because they are interrelated with one another, ठीक है, in one way or the other. So different elements or parts of business environment are closely interrelated, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, मतलब वो ज्यादा जी रहे हैं, ज्यादा नंबर ऑफ ईयर्स तक जी रहे हैं, and increased awareness for healthcare have increased the demand for many health products. अब वो ज्यादा जी रहे, क्यों जी रहे? बिकॉज दे आर बिकमिंग अवेयर दैट वी शुड कंज्यूम मोर ऑफ हेल्दी प्रोडक्ट्स, है ना। सो दे हैव दैट मच लेवल ऑफ अवेयरनेस कि जितना हम हेल्दी कंज्यूम करेंगे, जितना हेल्दी खाएंगे और पिएंगे, उतना ही हम लंबा जिएंगे, ठीक है, उतने ही हम नंबर ऑफ ईयर्स ज्यादा जिएंगे। तो इसको बोलते हैं इंटर रिलेटेडनेस, यानी कि दोनों केस में ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है, राइट। आगे चलते हैं डायनामिक नेचर। In case of management or in case of business, it is definitely a perception that it is of dynamic nature and not of static nature. Dynamic क्या है? जहां पे आपकी fluctuations ज्यादा आती रहती हैं, ठीक है, जो business environment कभी stable या fixed नहीं होता, ठीक है, whose tendency has to change. So business environment is dynamic in that it keeps on changing, whether in terms of technological improvement, shifts in consumer preference और entry of new competition in the market. तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि जैसे कि इन केसेस में भी कभी ना कभी आपकी डिमांड प्रोडक्ट की बदलती रहती है, चाहे वो आपका टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया तो देयर इज अ चेंज इन डिमांड, देयर इज अ चेंज इन योर बिजनेस, ठीक है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस बदली तो भी चेंज आता है डिमांड में, राइट, और न्यू कंपटीशन आ गया है और कंपटीशन आ गया है तो भी चेंजेस आते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? विच यू कैन नॉट परसीव वेल इन एडवांस। तो अनसर्टेनिटी में द बिजनेस हैज दैट टेंडेंसी टू परसीव द अनसर्टेनिटी एंड टू रिड्यूस दैट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है। अनसर्टन होता है बिकॉज यू कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट कि ऐसा ही होगा। यू कैन जस्ट मेक अ प्लान कि ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी की डिग्री हमेशा इन्वॉल्व रहती है बिजनेस एनवायरमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी रेफर्स टू कि बहुत सारे न्यूमेरस फैक्टर्स हैं जिनके इन्वॉल्वमेंट की होने की वजह से उनके टास्क को भी कंपाइल करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे कि इसमें कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरस, interrelated and dynamic conditions or forces which arise from different sources, it becomes difficult to comprehend at once what exactly constitutes a given environment. तो बहुत सारे factors और forces के presence होने की वजह से at once शुरू में it is difficult to recognize and to comprehend, मतलब समझ पाना कि उन factors को हम work कैसे करें, समझे कैसे, सिंक्रोनाइज कैसे करें, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आपका बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, राइट। आगे चलते हैं। रिलेटिविटी। इसका मतलब क्या है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट है, जो उसका बेसिक मीनिंग है, दैट इज नॉट
सिमिलर फॉर ऑल द एरियाज, फॉर ऑल द पैरामीटर्स, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिव कॉन्सेप्ट इसीलिए है क्योंकि हर कंट्री और हर रीजन में इसका जो बेस है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे इफ आई से कि कुछ वुलन गारमेंट्स की जो सेल होती है, it is more likely to happen, it is more likely to rise in those countries where the weather is too extreme. Too extreme मतलब है too cold, ठीक है। so वहां पे उस अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट की डिमांड उतनी बढ़ेगी, उसकी सेल उतनी बढ़ेगी, बिकॉज वहां पे डिमांड ज्यादा है। तो वहां का बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स है उस अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं, बट दे विल नॉट एक्ट सिमिलरली इन अदर कंट्रीज लाइक दैट ऑफ इंडिया, जापान एटसेट्रा। ओके, सो ये चीजें मैटर करती हैं कि रिलेटिविटी प्रेजेंट करती हैं कि हर कंट्री या हर रीजन में बिजनेस एनवायरनमेंट की जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंट हो जाती है। ओके, सो यहां तक थे आपके फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस में द फर्स्ट वन इज it enables the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. So you all are very much aware about this acronym. What's this SWOT? SWOT क्या होता है? SWOT क्या होता है? SWOT, S refers to strength, W refers to weakness, O refers to opportunities, and T refers to threats. Okay, तो SWOT एनालिसिस हर बिजनेस अपना अपना करता है। स्ट्रेंथ और जो अपॉर्चुनिटी है हमारी, ये दोनों की दोनों नेचर में क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। स्ट्रेंथ्स आर द कोर पिलर्स ऑफ योर बिजनेस, अपॉर्चुनिटीज आर दोज विच यू ग्रैब आउट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। सो बोथ वर्क्स पॉजिटिवली इन नेचर। लेकिन अगर हम वीकनेस की बात करें और थ्रेट्स की बात करें, सो दे आर नेगेटिव इन नेचर, ठीक है। वीकनेस वो होती हैं विच यू हैव टू वर्क अपॉन देम, और थ्रेट्स क्या होते हैं? लाइक देयर कॉम्पिटिशन और चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, चेंज इन पॉलिटिकल पार्टीज, सो दे वर्क एज थ्रेट टू यू, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी वजह से आपको बाहर की अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट होता है कि क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल है आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, ठीक है। तो उनको एनालाइज करने के बाद यू हैव दैट विजन दैट यू नीड, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट, देन यू कैन इजीली गेटिंग देम द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। व्हाट इज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज? मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना जो अभी तक किसी ने नहीं किया है, बहुत सोच समझ के, कस्टमर्स की क्या नीड है, बिजनेस के क्या फैक्टर्स हैं, क्या स्पेसिफिक है, क्या जनरल है, कितनी टेंडेंसी है उसके बिकने की, ठीक है। सो वो सब एनालाइज करने के बाद जब आप एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो वेयर देयर इज नो कॉम्पिटिशन इन द मार्केट विद यू, दैट इज कॉल्ड द गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मारुति कार की, ठीक है। सो व्हेन इट वाज लॉन्च्ड, its vision was to target those consumers who belong to middle section plus who are family members, ठीक है, जिनके फैमिली मेंबर्स 3 से 4 होते हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए मारुति ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया था। आफ्टरवर्ड्स देयर वर न्यूमेरस ब्रांड्स हु इमिटेट दैट प्रोडक्ट, लेकिन फर्स्ट मूवर एडवांटेज किसको मिला था? मारुति को। ओके, सो अपॉर्चुनिटीज क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स होते हैं, ओके, और इनको अर्ली आइडेंटिफाई करने से एंटरप्राइज को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको एक्सप्लॉइट कर सके, उनको फुल्ली यूटिलाइज कर सके, ओके। सो ये फायदा मिलता है। सेकेंड इज इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। तो हमने अपॉर्चुनिटीज तो पढ़ ली, अब थ्रेट्स की बारी है ना, क्योंकि जहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं हम थ्रेट्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, राइट। तो जहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पे थ्रेट्स मतलब क्या है? खतरे क्या है? तो खतरे को हम अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं, है ना, हमें उनसे भी कोप अप करना पड़ता है, डील करना पड़ता है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट की हेल्प से जितने भी थ्रेट्स हैं एनवायरनमेंट में हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और जितनी भी अर्ली वार्निंग सिग्नल्स है कि व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी कैन ऑल्टर, ठीक है, सो वो चीजें भी हम कर सकते हैं इसकी हेल्प से, बिजनेस एनवायरनमेंट की हेल्प से।
आगे चलते, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस. Tapping useful resources means where you can efficiently convert your resources into your output without minimum wastage or without bare wastage. The business enterprise supplies the environment with its output such as goods and services, customers के लिए, government को tax pay करने के लिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देने के लिए, ठीक है. सो ये सब चीजों के लिए बिजनेस एंटरप्राइज वर्क करता है, ठीक है, उनको आउटपुट देता है. बिकॉज द एंटरप्राइज डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंट एज अ सोर्स ऑफ इनपुट्स, क्योंकि उसको अपने रॉ इनपुट्स के लिए भी सोसाइटी पर ही, एनवायरमेंट पर ही डिपेंडेंट होना पड़ता है. तभी उसको क्या मिलेंगे? यूजफुल रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू पे बैक टू इट्स एनवायरमेंट इन फॉर्म ऑफ कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट को टैक्सेस और फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स. ओके, आगे चलते हैं. इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस बिकॉज सिंस वी हैव डन इन फीचर्स कि आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, वो फ्लक्चुएट होता रहता है. वो नेचर में क्या है? डायनामिक है. डायनामिक है, इसीलिए यू नीड टू cope up with those changes. So business environment को analyze करने से you can have that vision कि how can you cope up with the rapid changes. Rapid changes मतलब क्या है कि एक change हुआ, आप उसके लिए prepare हो या आपने उससे deal कर लिया? No, it's not like this. That business में हमेशा frequent changes आते ही रहते हैं, ठीक है. It could be due to change in government policies, government law, change in political party, introduction of new markets, ठीक है, इंक्रीज इन योर कंपटीशन, ठीक है, या प्राइस में चेंज आता है. तो कुछ भी चेंजेस आने की वजह से बिजनेस हैज टू डील विद दैट इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द मार्केट. सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि इफ यू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट प्रॉपरली, इट हेल्प्स यू इन कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस. ओके, आगे चलते हैं. इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. इसके लिए, बिजनेस के लिए, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स दोनों ही होती हैं, इसीलिए दोनों की अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी हो जाता है. और उनके बेसिस पर ही उनके बेसिस पर ही आप फ्यूचर के लिए प्लान बना सकते हो, पॉलिसीज बना सकते हो कि हमें आगे क्या कैसे काम करना है, ठीक है. तो किसकी हेल्प से होगा? बिजनेस एनवायरनमेंट की हेल्प से. इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन व्हेन यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ योर अपॉर्चुनिटीज एंड योर थ्रेट्स. ओके, आगे चलते. इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. वेरी मच प्रिसाइज कि बिजनेस एनवायरनमेंट में व्हेन यू हैव डेल्ट विद ऑल द फ्रीक्वेंट चेंजेस, व्हेन यू हैव आइडेंटिफाइड ऑल द अपॉर्चुनिटीज, व्हेन यू हैव got the early signals, then you can easily formulate the policies, easily implement the policies that you have devised. Okay, that will lead to increase in performance. That will definitely lead to increase in performance or improving of your performance. Okay, so that's why it is important, right? Moving forward, dimensions of business environment. So very, very, very important. डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. मैंने बताया था अभी कि आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो दो फोर्सेस में बटा हुआ है. एक है आपका जनरल फोर्सेस और एक आता है स्पेसिफिक फोर्सेस. स्पेसिफिक फोर्सेस में क्या क्या आते थे आपके? इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, एटसेट्रा, ठीक है. और जनरल में क्या आते हैं आपके? स्लेप्ट फैक्टर्स आते हैं. उन्हीं स्लेप्ट फैक्टर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ओके, टू बिगिन विद द फर्स्ट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो सारे कंपोनेंट्स आते हैं विच आर रिलेटेड टू मनी और प्राइस. जितने भी कंपोनेंट्स आपके मनी या प्राइस के रिलेटेड हैं, उन सबको वो सब कहाँ डिटरमिन किए जाते हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में. जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स, व्हाटएवर टू पे, व्हाटएवर टू रिसीव, ठीक है. इन्फ्लेशन रेट्स, महंगाई के रेट्स हैं. चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल. डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? इनकम का वो पार्ट जो कि खर्च किया जाता है,
ठीक है। सो चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, स्टॉक मार्केट के इंडाइसेस की कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू ऑफ रुपी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। सो वो सब चीजें आपकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। तो हाउ डज दीज काइंड्स ऑफ फैक्टर्स हैव इम्पैक्ट अपॉन योर बिजनेस, वो सब किस में आता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं सोशल एनवायरनमेंट। सोशल में क्या आता है, इट इंक्लूड्स सोशल फोर्सेस जैसे कि कस्टम्स, ट्रेडिशंस, सोशल वैल्यूज, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, बिजनेस के साथ जितने भी सोसाइटल व्यू पॉइंट है वो सारे आपके सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं। क्या ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हो, क्या सोशल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जो सदियों से चलती आ रही है, क्या उनका विजन है, ठीक है, क्या उनकी वैल्यूज, वैल्यूज रेफर्स टू कंसेप्ट्स दैट अ सोसाइटी होल्ड्स इन हाई एस्टीम, ठीक है। एस्टीम नीड्स होती है ना, और सेल्फ रिकॉग्निशन इब्राहिम मैस्लो की, राइट। तो उसके अंदर वैल्यूज आती हैं। तो क्या सोशल एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज हैं, सोशल प्रैक्टिसेस हैं, उनका कैसे इम्पैक्ट है बिजनेस के ऊपर, हाउ डज दे इन्फ्लुएंस अपॉन योर बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। सो वो आपका आता है सोशल एनवायरनमेंट में, राइट। अब कुछ एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं सोशल एनवायरनमेंट के और क्लियर हो जाएगा। एटीट्यूड्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट इनोवेशंस, नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च हुआ है तो कंज्यूमर्स का एटीट्यूड कैसा है, मतलब क्या उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हुई है या ड्रॉप हुई है, ठीक है, वो सब देखना। लाइफस्टाइल कैसा है लोगों का, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लोगों की इनकम्स किस किस कैटेगरी में बटी हुई है। आगे कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या क्या है, राइट, what is the consumer preference, what do they actually need, concern with quality of life, quality of life refers to how much is the disposition level of their income, कितना खर्चा करते हैं, कितना खर्चा करने के काबिल है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये भी आपका सोशल एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम वर्कफोर्स, जिनको आपने एम्प्लॉय किया है उनसे व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, ठीक है। शिफ्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वर्कफोर्स में विमेन की शिफ्टिंग किस हिसाब से, हाउ मच विमेन आर यू एम्प्लॉइंग ऑन योर वर्क स्पेस, ठीक है। बर्थ और डेथ रेट्स हो गए, पॉपुलेशन के शिफ्ट्स आ गए, वेदर इट्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कौन सा फेज है। एजुकेशन का सिस्टम क्या है, लिटरेसी के रेट्स क्या हैं, कंजम्पशन की हैबिट्स क्या हैं, फैमिली कॉम्पोजिशन मींस जॉइंट ज्यादा है या फिर न्यूक्लियर ज्यादा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स आपके किस में आते हैं, सोशल एनवायरनमेंट में। तो नेक्स्ट इज योर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में इट इज अबाउट द अपडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। हाउ फास्ट और हाउ फ्रिक्वेंटली योर टेक्नोलॉजी हैज बीन अपडेटेड, ठीक है। It's very pertinent for a business कि if the technology has been rapidly changing, in order to survive in the market, it should ensure that it should employ the new or updated technology, ठीक है। पहली बात तो ये है कि it reduces the number of laborers to be employed to complete the task. Second है it ensures maximum efficiency, right? Third है कि competition में lag नहीं करती है कभी business. ओके, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में वो सारे फोर्सेस आते हैं कि कितनी इंप्रूवमेंट है आपकी टेक्नोलॉजी में, आपकी इक्विपमेंट्स में, ठीक है। जिस तरीके से आप गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हो, क्या मेथड्स टेक्निक्स हैं जिससे आप बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो, जैसे कि रीसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनकी वजह से कंपनी प्रॉस्पर कर रही है, अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करती है। तो वेब पब्लिशिंग तो हम बोलते हैं कि इट इज द कॉमन मेथड टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट, लेकिन वेब पब्लिशिंग में भी क्या क्या सब स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से दे आर डिवाइजिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज टू गेट इन द मार्केट। ओके, सो ये सब कंपोनेंट्स आपके आते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर। आगे चलते हैं पी रेफर्स टू पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, ठीक है, वो पॉलिसी अगर चेंज होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट है बिजनेस पे। कोई सर्टन पॉलिसी है जिसकी वजह से बिजनेस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है तो बिजनेस प्रॉस्पर करता है, या कोई अदर सर्टन पॉलिसी है जिसकी वजह से बिजनेस थोड़ा
उसका ग्राफ गिर जाता है, वो फॉल हो जाता है, उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं, या चेंजेस इन पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि आफ्टर एवरी 5 years यू नो दैट पॉलिटिकल पार्टी वोट कंटेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री, वो कब रहती है, जब पॉलिटिकल पार्टी एक लंबे समय तक रहती है। So there may be uncertainty of business activities due to political unrest and threats to law and order. So इसमें कुछ भी changes आते हैं that hamper your business growth. Okay, अब कुछ political environment के हम elements पढ़ लेते हैं, जैसे कि prevailing social system, prevailing political system अभी कैसा है, what schemes and policies has been launched by the presently working ruling party, ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिटिसाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक इश्यूज, डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना है आपके बिजनेस के ऊपर, ठीक है, वो कितना कंट्रोल है पॉलिटिकल पार्टीज का, डोमिनेंट आइडियोलॉजीज एंड वैल्यूज ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, सेम चीज है कि वो कितनी डिग्री का वो रूल करते हैं हमारे बिजनेस के ऊपर, द नेचर एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप एंड थिंकिंग ऑफ पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज, बिकॉज देयर इज नो सच general principle ki how a political party should work, but it is typically based upon their ideologies कि वो क्या उनकी धारणा है, कैसे काम करेंगे, ठीक है, are they majorly devoted towards spirituality or are they devoted towards the country's improvement in terms of wealth, ठीक है, so level of political morality किस level की है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक गवर्नमेंट एंड अलाइड एजेंसीज जो उनके साथ मिलकर काम करती हैं, राइट, एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, कितना बिजनेस में कितनी इन्वॉल्वमेंट है, कितना वो उनका ज्यादा रोल प्ले करते हैं, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विद फॉरेन कंट्रीज, वो भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आता है, ठीक है। अगर एक बिजनेस एग्जिम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा वर्क करता है, एग्जिम मीन्स क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो अगर कोई बिजनेस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ज्यादा ट्रेड है तो उस केस में पॉलिटिकल पार्टी तभी बेनिफिशियल उसके लिए वर्क करेगी अगर इफ इट हैज गुड रिलेशंस विद द अदर कंट्री, ओके, सो इट हैज द डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट अपॉन बिजनेस, कंट्ररीली अगर ऐसा नहीं होता है तो देयर इज नेगेटिव इम्पैक्ट, ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। आगे चलते हैं, लीगल एनवायरनमेंट। What is legal environment? Legal environment refers to जहां पे हम laws, कानून, ठीक है, क्या प्रावधान है उनका, क्या उसके लिए stringent action लिया जा सकता है, अगर ऐसा नहीं मानोगे तो ऐसी punishment मिलेगी, ऐसा punitive action लिया जाएगा, तो ये एक deliberate act है which the business has to follow, must, it's must, okay, so वो आता है legal environment के अंदर। It includes various legislations. Legislation क्या होता है, एक तरह के ऐसे रूल्स हैं जो गवर्नमेंट पास करती है पार्लियामेंट के अंदर, ओके, passed by the government, administrative orders issued by government authorities, court judgments as well as decisions rendered by various commissions, agencies at every level of the government, center or state, center, state और local level, ठीक है। सो लीगल एनवायरनमेंट के अंदर क्या लेजिस्लेशंस बने हैं, गवर्नमेंट ने क्या लेजिस्लेशंस बनाए हैं, उन लेजिस्लेशंस को फॉलो करना डेलिब्रेट एक्ट होगा, अगर फॉलो नहीं किया जाता है तो उसके अगेंस्ट व्हाट विल हैपन, उसके अगेंस्ट प्यूनिटिव एक्शन ले सकते हैं, प्यूनिटिव या फिर स्ट्रिंजेंट एक्शन, स्ट्रिंजेंट बोल सकते हैं या स्टर्न एक्शन लिया जाता है, ठीक है, तो ये होता है लीगल एनवायरनमेंट। अब एक चीज बता दूं कि लीगल और पॉलिटिकल के बीच में डिफरेंस क्या होगा बच्चे, पॉलिटिकल सिस्टम में वहां पे द चेंजेस इन पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल अनरेस्ट, हाउ देयर रिलेशंस हैव बीन मेंटेन्ड विद अदर कंट्रीज, ठीक है, पॉलिटिकल सेफ्टी, पॉलिटिकल पीस, तो ये सारी चीजें कहाँ आती हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर। लीगल में वो सारे रूल्स और लेजिस्लेशंस होंगे दैट हैज बीन पास्ड बाय द गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिश्ड बाय योर पार्लियामेंट which has to be obeyed deliberately, ठीक है, मानना ही पड़ेगा, against which if you not follow, you means the business, if it not follows them, so it can have a strict action
taken by the parliament, ठीक है, by the government. Okay, तो यहाँ तक we have completed our general forces of the business environment. सेकेंड की बात करते हैं हम, वो है हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस, ठीक है. तो स्पेसिफिक फोर्सेस में वी हैव कस्टमर्स, ठीक है, सप्लायर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, एटसेट्रा. ये सब इंडिविजुअल्स हमारे दे आर प्रेजेंट इन योर स्पेसिफिक फोर्सेस. स्पेसिफिक क्यों बोला? बिकॉज वी कैन इजिली टारगेट देम. कस्टमर्स, वाई सो? बिकॉज a business has the responsibility to serve their customers with good quality products and services in order to grow in the market. ठीक है, so they act as the pertinent specific forces to you. बिना इनके तो business work ही नहीं करेगा, ठीक है. So that's why customers are very very important. आगे चलते हैं suppliers. Suppliers कौन होते हैं? Those individuals from whom the business takes raw materials or inputs in order to convert them into finished goods. ठीक है, because it is not always possible for a business to get the raw materials by themselves, है ना. There should be supplier or suppliers. After negotiating with them, they can have the output, the source of output from them, ठीक है, जिसको बाद में वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, सो सप्लायर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सप्लायर्स के बिना वो प्रोडक्ट बनाएंगे कैसे, है ना. अगर इनपुट नहीं आएगा तो आउटपुट में कन्वर्ट कैसे करेंगे. आगे चलते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. अभी इन्वेस्टर्स कौन हो सकते हैं आपके? शेयर होल्डर्स, ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स, और बॉन्ड होल्डर्स, ठीक है. सो ये वो इन्वेस्टर्स हैं which invest their money into the business in order to get the returns. ठीक है, कोई भी पब्लिक में अगर इन्वेस्ट करेगा आपके बिजनेस में, उसका हमेशा ये रोल रहता है कि he or she is seeking for some return out of the part that he or she has invested into business. तो बिजनेस में वो इन्वेस्ट इसीलिए करता है ताकि उसको रिटर्न में कुछ अमाउंट मिल सके. अब वो जो रिटर्न में अमाउंट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? या तो हम उसको बोलते हैं डिविडेंड, या फिर हम उसको क्या कहते हैं? इंटरेस्ट. फर्क क्या है? शेयर्स पे मिलता है डिविडेंड और डिबेंचर से मिलता है इंटरेस्ट, ठीक है. तो शेयर्स पे डिविडेंड, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट, बॉन्ड पे इंटरेस्ट. ओके, तो ये सब चीजों को भी पे बैक करना, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस. दैट्स व्हाई इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स डू कम इन द कैटेगरी ऑफ स्पेसिफिक फोर्सेस. ओके, सो ये सारे आपकी जो पार्टीज है वो स्पेसिफिक फोर्सेस में आती हैं, ठीक है. तो यहां तक क्लियर है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट के डिमेंशंस जो हमने किए थे, जनरल फोर्सेस एंड स्पेसिफिक फोर्सेस. जनरल में क्या थे? स्लेप्ट फैक्टर्स. लेफ्ट में क्या आता है? सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल. और स्पेसिफिक में क्या क्या आते हैं? कस्टमर्स, सप्लायर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, एटसेट्रा. ओके, आगे चलते हैं. डीमोनेटाइजेशन. डीमोनेटाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट रेफर्स टू कि जब कोई स्पेसिफिक करेंसी की डिनोमिनेशन है, इट सीज टू वर्क. इट सीज टू वर्क. सीज का मतलब क्या होता है? वो काम करना बंद कर देती है. अब वो लीगली एक्सेप्टेड नहीं है कंट्री के अंदर. तो डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था? इट हैपेंड इन 8 नवंबर 2016. 8 नवंबर 2016 को with profound implications on Indian economy. So उस दिन हमारा डीमोनेटाइजेशन हुआ था. कंट्री की दो लार्जेस्ट डिनोमिनेशंस थी. कौन सी? 500 की और 1000 की. जितने 500 और 1000 के नोट्स थे, दे वर डीमोनेटाइज्ड, कि वो फर्दर काम नहीं करेंगे. 500 1000 के नोट्स विद इमीडिएट इफेक्ट, उसी टाइम से जिस टाइम वो एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है, डीमोनेटाइज हुआ.
सीजिंग टू बी लीगल टेंडर, सीजिंग मतलब अब वो काम नहीं करेंगे। लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है? वो करेंसी जो आरबीआई इशू करती है ना। सो आरबीआई ने जो करेंसी इशू की, जो इकोनॉमी में वर्क करेगी, रन करेगी, उसको हम लीगल टेंडर मनी कहते हैं। एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्पेसिफाइड पर्पस सच एज पेइंग यूटिलिटी बिल्स, दैट इज ट्रू फॉर सम टाइम एज वेल। ओके, तो जितनी कंट्रीज की दो लार्जेस्ट डिनोमिनेशन थी 500 और 1000 की, दे एक्ट सीज टू बी लीगल टेंडर, ठीक है, वो नहीं काम की। और आगे चलते हैं, दिस लेड टू 86% ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन इनवैलिड, यानी कि पूरी 100 में से आप लगा के चलो कि जो इंडियन करेंसी थी उसमें 86% तो 500 और 1000 के ही नोट्स थे। 86% की करेंसी हॉल्ट हो गई थी यूज करने के लिए, तो इट रेफर्स टू, इट लेड टू 86% ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इनवैलिड। सोचो कितना इम्पैक्ट आया था, बिकॉज द नंबर ऑफ करेंसीज दैट वर यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज वर कंसिस्ट ऑफ 500,000 के नोट्स। ओके, एम क्या था? डीमोनेटाइजेशन किया क्यों गया? देयर वर मल्टीपल रीजंस। करप्शन कम करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए, टैक्सेस की बचत या टैक्सेस की जो चोरी करते थे लोग उस पर रोक लगाने के लिए, ठीक है। सो मल्टीपल रीजंस थे, और लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूड करना, डिजिटली इंक्लूड करना, उसके लिए भी कि लोग कम से कम पेपर करेंसी यूज करें एंड दे शुड इंक्लाइंड मोर टुवर्ड्स दी ई करेंसीज, ठीक है। सो पढ़ लेते हैं, एम क्या था? करप्शन को कम करना या खत्म करना, काउंटरफीटिंग द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज, स्पेशली इसके लिए। तो जो भी स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज होती थी, इलीगल एक्टिविटीज, स्पेक्यूलेशन हो गया, ट्रैफिकिंग हो गया, उन सब गेम्स में, उन सब एक्टिविटीज में आपके हाई डिनोमिनेशन के नोट्स यूज किए जाते थे उनको काउंटरफीट करने के लिए, ठीक है, उनको कैंसिल करने के लिए, एंड स्पेशली द एक्यूमुलेशन ऑफ काला धन, ठीक है, जो कि लोग इनकम से कमाते थे। सो इन सब चीजों पर रोक लगाने के लिए डीमोनेटाइजेशन किया गया था। Am I clear? आगे चलते हैं, फीचर्स पढ़ते हैं। तो डीमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि टैक्स के में जो लोग टैक्स की चोरी करते थे, टैक्स की बचत करते थे, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और देयर शुड बी मोर कलेक्शन ऑफ द टैक्स अमाउंट। ओके, सो कैश होल्डिंग्स अराइजिंग फ्रॉम डिक्लेयर्ड इनकम was readily deposited in banks and exchanged for new notes, but those with the black money had to declare their unaccounted wealth and pay taxes at a penalty rate. तो जिनके पास तो नॉर्मल मनी थी वो तो बैंक से जाके एक्सचेंज करवाते रहे, लेकिन जिनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था कि किस फाइनेंशियल सोर्स से आपको इनकम मिली है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनअकाउंटेड वेल्थ, जो सही ढंग से ना कमाई गई हो, तो उनके ऊपर रोक लगाने के लिए, और वो जब बैंक में आई है तो उस पर टैक्स देने के लिए और पेनल्टी देने के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। आगे चलते, डीमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड एज अ शिफ्ट ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इंडिकेटिंग दैट टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड और एक्सेप्टेड। जो लोग टैक्स इवेजन क्या होता है? टैक्स की चोरी, टैक्स बचाना, लोग टैक्स बचाते थे इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स, अपने पैसे बचाने के लिए, तो वो चीज पर रोक लगाने के लिए भी डीमोनेटाइजेशन किया गया। ओके, ये कैसे हुआ? टैक्स इवेजन कैसे हटा? ट्रांसपेरेंसी बढ़ने से। ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ी? इनकम का जो प्रॉपर सोर्स है उसका प्रॉपर अकाउंट रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा था ना, पैन कार्ड्स आर मैंडेटरी, बिकमिंग मैंडेटरी, दैट विल गिव यू डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर ऑफ इनकम, फुल डिस्क्लोजर ऑफ इनकम। जो भी इनकम आपने कमाई है वो कहां से आई है उसकी फुल ट्रांसपेरेंसी रखना, ताकि लोग टैक्स इवेजन ना कर सकें। ओके, आगे है, it also led to tax administration channelizing savings into formal financial system.
जितने भी लोगों के पास सरप्लस मनी है उसको कैसे फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में चैनलाइज कैसे कर सकते हैं, उसका बेटर आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, सो दैट कि पीपल जो है वो अपने घरों में पैसे बचा बचा के ना जोड़ें, बल्कि उनको ऐसे सिस्टम में इन्वेस्ट करें वेयर दे कैन अर्न रिटर्न अपॉन दैम, ठीक है। सो ये भी मकसद था। आगे है डिजिटल मकसद, सबसे जो इंपॉर्टेंट था डिजिटल मकसद, वो क्या था, टू क्रिएट अ कैशलेस और कैश लाइट इकोनॉमी, जहां पे लोग पेपर करेंसी को कम यूज करके, ठीक है, उसका यूज कम करके या उसको यूज ना करके जितना जो ई पेमेंट्स है, जैसे कि वी यूज ना गूगल पे, फोन पे, अदर वंस कम भारत पे एंड सो ऑन, तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स है वेयर यू कैन कंप्लीट योर ट्रांजेक्शंस बाय नॉट गिविंग द पेपर मनी, rather you should use the digital money, ठीक है। So to create a cashless or cash light economy where you can channelize more savings through the formal financial system and improving tax compliance, तो ये थे आपके फीचर्स। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, इम्पैक्ट पढ़ते हैं इसका। इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट अलग अलग फैक्टर्स पे कैसे आया, इसकी वजह से आपके जितने मनी या इंटरेस्ट रेट्स थे उन पे क्या इफेक्ट आया। मनी रेट्स या इंटरेस्ट रेट्स, आपकी कैश ट्रांजैक्शन कम हो गई, बैंक के डिपॉजिट्स बढ़ गए, फाइनेंशियल सेविंग्स बढ़ गई, क्योंकि लोग अब अपने घरों में पैसे ज्यादा नहीं रखते हैं, रादर दे डिपॉजिट दैम इन देयर बैंक्स और अदर फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। प्राइवेट वेल्थ की बात करें तो प्राइवेट वेल्थ क्या होता है, जैसे कि पर्सनल जो प्रॉपर्टी है उस पे क्या इफेक्ट आया, डिक्लाइंड सिंस सम हाई डीमोनेटाइजेशन नोट्स वर नॉट रिटर्न्ड एंड रियल एस्टेट प्राइसेस फेल, क्योंकि 86% की जो करेंसी थी वो आपकी 500,000 के नोट्स थे और रियल एस्टेट में प्राइवेट वेल्थ में आपके हायर डिनोमिनेशन के नोट्स ही लगते थे, इसीलिए उस केस में आपका डीमोनेटाइजेशन वर्क नहीं कर पाया, क्योंकि वो नोट्स रिटर्न नहीं हुए बिकॉज दे वर हैविंग अ लॉट ऑफ एक्यूमुलेशन, ठीक है। सो प्राइवेट वेल्थ में तो इट डजंट वर्क बेटर। पब्लिक सेक्टर वेल्थ, पब्लिक सेक्टर वेल्थ, पब्लिक सेक्टर मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर की जो वेल्थ है उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं आया, बिकॉज दैट वाज अर्लियर वर्क अपॉन बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। डिजिटाइजेशन में क्या है, बिल्कुल the aim of one of the aim of demonetization to was to increase or improve or launch the use of digital transactions, digital payments, ठीक है। काफी सारे आपके नए प्लेटफॉर्म्स लॉन्च हुए थे, रियल एस्टेट के तो प्राइसेस फॉल हो गए थे, वाई सो, बिकॉज बिकॉज एक्सेप्टेंस नहीं थी, रिटर्न्स नहीं थे डिनोमिनेशन के, उसकी वजह से रियल एस्टेट के जो प्राइसेस थे वो ड्रॉप हो गए थे, तो आपकी प्रॉपर्टीज सस्ती हो गई, दे बिकम चीपर। टैक्स कलेक्शन की बात कर, टैक्स कलेक्शन बढ़ गया था, इंक्रीज हो गया था, क्योंकि डिस्क्लोजर था, इनकम्स का डिस्क्लोजर था, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी थी कि फ्रॉम वेयर द इनकम हैज बीन, ठीक है, सोर्स क्या है इनकम का, तो टैक्स कलेक्शन बढ़ गया था, ओके। तो ये थे आपके कुछ इम्पैक्ट डीमोनेटाइजेशन के। आई होप दिस टॉपिक हैज बीन क्लियर। डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था लॉन्च, कौन कौन से नोट्स डीमोनेटाइज हुए थे, ठीक है, कितना परसेंट एक्यूमुलेशन था, क्या उसका एम था, क्या फीचर्स किए हमने और क्या क्या उसका इम्पैक्ट डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर आया है, ठीक है। तो यहां तक कंप्लीट हो गया है आपका आज का चैप्टर विच इज बिजनेस एनवायरनमेंट, ओके। So in today's session we have done the business environment, its meaning, it's the totality of all the external forces. Your external forces pertains to your specific and general forces, okay. Then we had done the features of business environment, okay, ये features किए हमने, right. Then we had done importance, threats, opportunities, right, useful resources, ये importance की है। Dimensions में we had done our general and specific forces, right. How do they impact upon your business, जहां हमने proper elements भी पढ़े हैं उसके, okay. और लास्ट में किया है demonetization,
its meaning, when does it happen, why does it happen, where do has it its impact upon, ठीक है, इसके features क्या थे और कैसे कैसे different sectors पे ये impact किया था. I hope आज का session आपको पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा, the most importantly, ठीक है. So till this time we have done with our today's session, chapter number 3, business environment. नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे प्लानिंग, द 4th चैप्टर विच इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ओके, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल. सी यू इन नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.